We have keynote address by Dr. N.K. Gupta, Director, SKN Agriculture University, Jaipur, on seed spices, Rajasthan's untapped potential in the global market. Dr. N.K. Gupta is a professor of plant physiology and director, PME, at the SKN Agriculture University, Jaipur. He obtained his PhD in 1997 from the prestigious Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. He was awarded the Biotech Overseas Association 2006-2007 by the Government of India and completed his postdoctoral research at the University of Australia. He has also served as the visiting professor 2013 at the University of Nebraska, Lincoln, USA. With over 25 years of teaching experience, Dr. Gupta has guided 15 postgraduate students in their research dissertations. He is a fellow of several academic associate societies and has been honored with prestigious recognitions including the J.J. Shenoy Gold Medal Award by the Indian Society for Plant Physiology in 2019 and the first R.S. Paroda Best Scientist Award in 2020. A prolific researcher, Dr. Gupta has published more than 100 research papers in reputed national and international journals. His scholarly contributions also include 6 authored books, 1 edited volume, and 20 book chapters. Dr. Gupta has an impressive H-index of 25. I will request him to please come on stage and deliver a keynote address. Please give a big hand for Dr. N.K. Gupta. Thank you. Good morning to all. Respected dais, nobody is there, but respected dais and organizers of this event, NNS group, and one person I know, Shri Vinodji Jain Sahab, to whom I was in contact, Mr. Himmat Chaudhary, and all the delegates, ladies and gentlemen, media, and all others. First of all, I extend my heartfelt thanks to NNS group for inviting and giving me a chance to deliver this keynote address. Actually, I am an academician, so my lecture is something different. I would like to say that what we are doing in spices, what our industry is doing, what government is doing, and how we can help the industrialist to go ahead, and what are our expectations. So this will be the theme of my talk. So to begin with, next page. Yes. Actually, everybody knows that spices are the integral part of our life. They help in the cholesterol downing. They are antioxidant. They act as an anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetic in every part. Yes. So spices can help us to cure many diseases, and that may be one of the reasons in Western countries use of spices are increasing. If we talk today, approximately 2 million hectares of our land is used for production of spices, and we are yielding 1.5 million tons of various spices annually. If we talk about the seed spices, ओके, तो एक मिक्स कर लेंगे. तो स्पाइसेज बहुत बड़ा वर्ड है. स्पाइस में 2 तरह के होते हैं, प्लांटेशन स्पाइसेज एंड सीड स्पाइसेज. हमारा जो राजस्थान है, वी आर लीडर इन सीड स्पाइसेज, और गुजरात और राजस्थान वी आर प्रोड्यूसिंग 80% जो सीड स्पाइसेज है, हम 2 स्टेट मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमें सीड स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है. राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो हम ये 4 मेजर स्पाइसेज हैं राजस्थान में: क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल और फेनुग्रीक, जीरा, सौंफ, धनिया और मेथी. और हम इसमें नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन पर हैं.
माइनर स्पाइसेज की बात करें, इन 4 के अलावा कुछ स्पाइसेज और भी राजस्थान में होते हैं, जिसमें अजवाइन, दिल, नाइजेला, पॉपी और सेलेरी हैं। इस पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, इनको आने वाले समय में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द सीड स्पाइसेज। एक्चुअली वी आर एक्सपोर्टिंग स्पाइसेज टू 130 कंट्रीज़। जो भी मेजर कंट्रीज हैं उनको हमारे यहाँ से सीड स्पाइसेज का एक्सपोर्ट होता है। ये 5 साल का डेटा अगर हम देखें तो जितना भी हम सीड स्पाइसेज प्रोड्यूस करते हैं उसका 10 से 15% हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इससे लगभग $7 बिलियन एनुअली हम कमाते हैं। लेकिन जो ग्लोबल डिमांड है उसका ये केवल 50 से 60% है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस 60% को 80%, 90% पर पहुंचा सकते हैं? इट विल बी, इफ अगर हम ऐसा कर सकते हैं, इट विल ए जॉइंट वेंचर ऑफ द फार्मर्स, साइंटिस्ट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड वी कैन अर्न द मनी। ये 5 साल का डेटा है। देखिए कुछ समस्याएं हैं, जैसे कोरिएंडर है, 2020-21 में बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, लेकिन बाद में डाउन हो गया क्योंकि क्यूमिन ब्लास्ट एक डिजीज आ गई थी। आप इंडस्ट्री, आपको ज़्यादा पता है, कंसाइनमेंट्स हमारे वापस आ गए थे और काफ़ी पेपर में भी ये चीज़ आई थी। इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि किसानों को हम समझा पाएँ किस ढंग का प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन 2 तरह से होता है। अगर लोकल मार्केट में हमें निकालना है, अलग ढंग का उसकी स्ट्रेटेजी होती है। एक्सपोर्ट बेस्ड अगर प्रोडक्शन करना है, अलग ढंग की स्ट्रेटेजी होती है। उसके लिए फार्मर्स को समझाना पड़ेगा। उनको कौन समझाएगा? या तो आप समझाएंगे, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, या आपके थ्रू हम समझाएंगे कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल में अगर हमें आप रियल में आगे बढ़ना है तो फार्मर्स को प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो स्पाइसेज हैं उनमें फ्लेवर अच्छा है, ऑयल कंटेंट अच्छा है, उनकी मेडिसिन वैल्यू भी है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान का जो स्पाइस है उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ केमिकल का कम यूज होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारे फार्मर ज़्यादा हैं। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ही कम केमिकल यूज होता है। हमारे गौवंश खूब है, एनिमल्स खूब हैं, उनका गोबर खेती में अभी भी काम में आता है। इसलिए हमारे स्पाइसेस में अभी भी ट्रेडिशनल जो टेस्ट है वो मेंटेन है। इसलिए राजस्थान के सीड स्पाइसेस की डिमांड और जगह से ज़्यादा है। इसको हमें एक्सप्लोइट करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये है, हम वी आर अर्निंग 7 बिलियन पर ईयर, क्या हम इसको 12-15 बिलियन पर पहुंचा सकते हैं? इफ़ वी इंक्रीज द एक्सपोर्ट बाई अनदर 10%, हमारा जो एक्सपोर्ट 60% है, अगर हम उसको 75% पर ले आते हैं तो हमारी जो इनकम है 7 बिलियन से हम 12-13 बिलियन पर पहुंच सकते हैं। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। यूनिक, सेफ, कॉम्पिटिटिव एंड अवेलेबल। हमारा स्पाइस यूनिक होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी, ऑर्गेनिक की बात कर सकते हैं, हम केमिकल फ्री की बात कर सकते हैं, डिजीज फ्री की बात कर सकते हैं, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। सेफ होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स फॉरेन में बहुत अच्छे होते हैं। उनके जो कंसाइनमेंट हमारा वापस नहीं आना चाहिए। इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे क्यूमिन ब्लास्ट से इमेज खराब हो गई, एक स्पाइस वापस आता है, 3 पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। ये आप लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कॉम्पिटिटिव, हमारा कॉम्पिटिशन अब वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना से है। उन स्टैंडर्ड्स पर हम खड़ा उतर सकते हैं क्या? और साथ है अवेलेबल। एक समस्या यह है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना सरप्लस भी है या नहीं, ये स्ट्रेटेजी कौन बताएगा? फार्मर अगर एश्योर है कि उसका प्रोड्यूस बिक जाएगा, आप लोग ले जाएंगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, वो दूसरी जो क्रॉप है उससे वो स्पाइस पे जा सकता है। लेकिन उसको एश्योरेंस चाहिए। एश्योरेंस किस चीज़ का? प्रोडक्शन बिकने का। सेकंड, उसको भाव पूरा मिलना चाहिए। ये 4 पॉइंट अगर हम कर सकते हैं तो वी कैन बी लीडर इन द सीड स्पाइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अब मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट वी हैव डन, बिकॉज एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट का क्या रोल है, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। एक्चुअली कोई भी क्रॉप की रिसर्च, चाहे स्पाइस हो चाहे दूसरी क्रॉप्स हो, ICAR इज़ द नोडल एजेंसी। ICAR के बनने से पहले स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर में। पूरे देश में हमारे 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं जॉबनेर में पोस्टेड हूँ। जॉबनेर की अगर बात करें, सीड स्पाइसेज हमारा पुराना हमारा एक टॉपिक रहा है रिसर्च का, और 1975 में ही SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्पाइसेज पर रिसर्च शुरू कर दी थी।
2000 में हमारे अजमेर में, क्योंकि हमारा ही पूरा हब है ये वेस्टर्न राजस्थान अजमेर सहित, तो नेशनल रिसर्च सेंटर खोला ICAR ने 2000 में, NRC ऑन सीड स्पाइसेज, और इसके अंडर में आज करीब 40 सेंटर एक्रिप के नाम से काम करते हैं। AICRP, ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सीड स्पाइसेज। हमारे यहाँ राजस्थान में 3 सेंटर हैं, गुजरात में भी 3 या 4 सेंटर हैं, और जॉबनेर भी उसमें 1 सेंटर है। तो 75 में जो काम शुरू किया वो इस NRC स्पाइसेज के अंडर में आगे बढ़ा दिया। नाउ वी आर AICRP ऑन सीड स्पाइसेज एट जॉबनेर। अब किया क्या है, NRC सीड स्पाइसेज, इसके जो 40 सेंटर सारे हैं, सीड स्पाइसेज के भी हैं, प्लांटेशन स्पाइसेज के भी हैं। प्लांटेशन स्पाइसेज कासरगोड में मेन वो लोग उनको डील करते हैं, वो कासरगोड उनका सेंटर होता है। एंड दिस NRC सीड स्पाइसेज हैड डेवलप्ड मोर देन 150 वेराइटीज फॉर spices all over the India. As far as Jobner is concerned, we have developed 35 varieties. 35 varieties हमने डेवलप करी हैं। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट की, डिजीज रेजिस्टेंस, ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ से डेवलप्ड हुई हैं। हमारे पास में एक डेटा है, क्यूमिन की 5, कोरिएंडर की 10, फेनुग्रीक की 10 और फेनल की 10 वैरायटी हमारे सेंटर से, हमारी यूनिवर्सिटी से डेवलप हुई हैं, जिनको फार्मर्स में लाइकिंग है, फार्मर्स इनको सीड को उगाता है। अब आपको ये देखना है इनमें कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट पोटेंशियल की है, उस वैरायटी को हम आगे एनकरेज कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी अगस्त 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 109 वैरायटीज़ रिलीज करी थी लाल किले से। उसमें खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ से एक फेनल की वैरायटी RF 290 भी रिलीज हुई थी। इट इज़ ए बायो फर्टिफाइड वैरायटी, जो ऑयल कंटेंट है 1.8 से 1.9% है। ये नॉर्मल वैरायटी होती है, उनमें करीब 1.2% ऑयल कंटेंट होता है, और भी उसकी कई खासियत हैं। तो वी आर प्राउड दैट आवर साइंटिस्ट हैड डेवलप्ड ए वैरायटी इन स्पाइसेज विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा बाजरे की, चने की वैरायटीज़ भी 109 वैरायटीज़ में सम्मिलित हैं, और इसी वजह से हमारे सेंटर को वी गॉट द बेस्ट AICRP सेंटर इन 2023। तो दिस इज आवर अचीवमेंट्स। इसके अलावा जो NRC सीड स्पाइसेज हैं, उसने और हमने, हमारे सेंटर ने मिलकर कई ऐसी चीज़ें डेवलप करी हैं जिससे कि फार्मर्स को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने में, प्रोसेसिंग में हेल्प हो। जैसे इन्होंने ये क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज, क्रायो ग्राइंडिंग की कई चीज़ें डेवलप करी हैं जो हाइजीनिक हों, माइक्रो लोड कम करती हूँ, और वोलेटाइल, एक्चुअली जब प्रोसेसिंग करते हैं सीड स्पाइसेज में वोलेटाइल ऑयल्स का लॉसेज ज़्यादा होते हैं, उस लॉस को कैसे कम किया जाए, उस फ्लेवर को कैसे बनाए रखा जाए, इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। और डिफरेंट तरह के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स हमने किए, और फार्मर्स को ट्रेनिंग के द्वारा इनको समझाया भी जाता है कि उनको सीड स्पाइसेज की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में किस तरह से आगे आना चाहिए। ये सोलर ड्रायर, सोलर एनर्जी कुकिंग, स्टरलाइजिंग, ड्राइंग की ट्रेनिंग की जाती है, और एक GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के बारे में ये पैकिंग करके बताया है किस तरह से फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी आगे आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेज हैं, आपके पार्ट पर भी हैं, फार्मर्स के पार्ट पर भी हैं, और सरकार के पार्ट पर भी हैं। सबसे जैसे प्रोडक्शन यूसेज, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या वाटर मैनेजमेंट। वी डोंट हैव द वाटर, वी डोंट हैव इरिगेशन वाटर। उसके लिए जो वेराइटीज मैंने बताई 35, उसमें कई वेराइटीज ऐसी हैं जो ड्रॉट टॉलरेंट हैं, और अभी हमारे क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज भी डेवलप की जा रही हैं ताकि फार्मर्स कम पानी में भी अच्छी फसल लगा सकें। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेनिंग्स, मैंने बताया कि हमारे जो किसान हैं प्रोडक्शन तो कर देते हैं, नॉर्मल क्रॉप से वीट वाले कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन किया, बेच दिया। लेकिन सीड स्पाइसेज की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग वो प्रोडक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे सीड की मंडियाँ नहीं है, स्पाइसेज की मंडियाँ नहीं है, फार्मर कहाँ लेकर जाए, और फार्मर को पूरा पैसा नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन गैप है उस चीज़ में। अगर उस चीज़ को हम कर लें तो हो सकता है हम सीड स्पाइसेज में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी, अगर हमें रियल में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट तैयार करने हैं तो क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए फार्मर्स को कुछ इनपुट्स, कुछ सब्सिडीज या कुछ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प भी करनी पड़ेगी। आपके ट्रेड एंड इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, जो मेरे दिमाग में है सबसे इम्पॉर्टेंट है
इंट्रिंसिक क्वालिटी ड्यू टू मिक्सिंग एंड लॉस ऑफ प्योरिटी। सबसे बड़ी बात है कि जो भी लॉट जाता है, मिक्सिंग की एक समस्या शायद आपके यहाँ है। जैसे मैंने क्यूमिक ब्राश का एक एग्जाम्पल कोट किया, डिजीज फार्मर जो केमिकल जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उस पर भी एक क्लियर कट हमें गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, विच केमिकल इज अलाउड, विच केमिकल इज नॉट अलाउड। अगर आपके पास में कोई लॉट फार्मर के पास है, आपको बताना पड़ेगा कि 20% एक्सपोर्ट जो होगा इसमें ये मेजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन पिक दैट मटेरियल। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर्स ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन के लिए फार्मर्स को रियल में एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लेवल पर हाइजीन एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कंटामिनेटेंट्स, एफ्लाटॉक्सिन, पेस्टिसाइड रेजिड्यू। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, एफ्लाटॉक्सिन इज ए मेजर प्रॉब्लम। हमारा जो फॉरेन कंसाइनमेंट जाता है उसकी चेकिंग होती है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ किसी लेवल तक वो अलाउ करते हैं, उस लेवल तक से नीचे हमारा वो आना चाहिए एफ्लाटॉक्सिन का लेवल, अदरवाइज एक्सपोर्ट नहीं होता है। स्ट्रिंजेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड ओवर ब्लेमिंग रेगुलेशंस। हमारे यहाँ फूड के जो रेगुलेशंस हैं फार्मर्स को तो कुछ भी नहीं पता है, वो सब अवेयरनेस हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंपटीशन में अदर्स हमें देखना पड़ेगा। इंडोनेशिया, वियतनाम जो आगे आ रहे हैं उनसे हमारा कंपटीशन है, उस कंपटीशन में हमें अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि बहुत पुराना न्यूज़ है कि कंटामिनेशन पूरा फैल होकर वापस आ गया। इस ढंग की जब न्यूज आती है ना, एक कंसाइनमेंट वापस आता है ना, फार्मर 2-3 साल तक उसको दोबारा लगाने की सोचता नहीं है, दूर हट जाता है। अगर आपका प्राइस नहीं मिलेगा, कोई चीज़ वापस हो गई ना, फिर फार्मर को कन्विंस करना मुश्किल होता है। आप भी जाओगे तो वो कहेगा साहब आपने पिछली बार इतना लगवाते मैं तलौस कर दिया, इसके बजाय तो मैं वीट बारे लगा लेता तो ठीक रहता। ये जो मेंटल सेट वो है ना, ये फार्मर को हमें डेवलप करना पड़ेगा। पॉलिसी की अगर हम बात करें, हमें सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सीड भी एक प्रॉब्लम है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी वैरायटी का सीड एक्सपोर्ट के हिसाब से ज़्यादा है। जैसे अभी फेनल की हमारी वैरायटी है जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज की थी, ऐसी वैरायटीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम साइंटिस्ट ने वैरायटी निकाल दी, बढ़ावा कब मिलता है, उसकी डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड या तो इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं या फिर एंड यूजर्स क्रिएट करते हैं। वैल्यू एडिशन, जैसे हमने बात करी, कोई भी जो ऑयल कंटेंट कम नहीं होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, इन सब के लिए हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, दैट इज योर पार्ट। इन्वेस्टिंग इन मार्केट इंटेलिजेंस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन विल एक्सचेंज एनहांस द एक्सेस एंड नॉलेज ऑफ लोकल फार्मर्स रिगार्डिंग ग्लोबल स्पाइस मार्केट। इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, हम केबी के माध्यम से भी करते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये है कि आपकी नीड क्या है, आप हमारे साथ बैठिए, हम बताएंगे और उस तरह से फार्मर्स को मोटिवेट किया जा सकता है। फार्मर्स लेवल पर देखो, आज भी हमारा फार्मर के पास स्मॉल होल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए आप सपोर्ट करें, मार्केटिंग में सपोर्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है वी हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स टू एनहांस दिस इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि राजस्थान कैन बी ए लीडर। राजस्थान हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनहांसेज ट्रेड एफिशिएंसी with well-connected roads and logistics, facilitating the movement of seed spices across national and international market. हमारे पास पोर्ट गुजरात में है, बहुत दूर नहीं है, रोड्स हमारे अच्छे हैं, फार्मर्स हमारे कुछ भी करने को तैयार हैं। तो राजस्थान कैन बी ग्लोबल लीडर इन सीड स्पाइसेस विद इमेंस अनटैप्ड पोटेंशियल। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग will enhance its reputation. Key initiatives I already told include promoting organic cultivation and strengthening export channel to meet worldwide demand. हम एक ही चीज़ पकड़ लें कि हमारे राजस्थान का प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है, मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स है, तो हम लीडर बनकर एक अच्छा मैसेज वर्ल्ड को दे सकते हैं। इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए साथ आना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में ही राजस्थान को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं स्पाइसेज में, तो फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, फार्मा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबको साथ आना पड़ेगा, एक जॉइंट विजन बनाना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन हैव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न एंड वी कैन मेक दिस ए लीडर।
और नहीं तो क्या होगा, एक पुराना बहुत पुराना छपा है, ओल्ड स्टोरी नीड्स न्यू कॉम्पिटिटिव एक्शंस। या तो हम करेंगे नहीं तो चाइना करेगा, एंड हमारी क्रॉप होते हुए भी दूसरे लोग दुनिया पर राज करेंगे। तो आई एम फ्रॉम जॉबनेर, आई वेलकम ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, कम sit together and do for the welfare of the farmers as well as for the welfare of nation to make our state global leader in the spices. Thank you.